السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند فاضل جلیل امیر اہل سنت حضرت مولانا مفتی ظہیر الحق صاحب، ظہیر الدین صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم ہے، آپ کی دعائیں شامل ہیں۔ ایک پیغام بتا دیں تاکہ عوام تک پہنچایا جائے کہ یہ حزب سلطان المناظرین تو کھل کے میدان میں آ گئے۔ خطیب ایشیا، خطیب اہل بیت، امیر اہل سنت حضرت مولانا قاری حنیف قریشی صاحب دعوت اسلامی کے خلاف کھل کے میدان میں آ گئے۔ ہاں، تو دعوت اسلامی کے خلاف تو جو ایسے کے لوگ ہیں وہ ہے ہی، اور دیکھیے ابھی ولادت ابو اس کے جو ولادت کا بتاتے ولادت جشن افطاری، ہاں ہاں الیاس قادری، ہاں جشن ولادت افطاری الیاس قادری، وہ اس نے نعرہ بھی لگایا کہ آمد اطہار مرحبا مرحبا یا اطہار، اس کے نعرہ لگایا، جلوس سے نکالا، اس کے اوپر تو فتویٰ بازی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قادیانی کا معاملہ تھا اسی کے برعکس، یعنی اس کا دوسری طرح سے معاملہ ہے۔ قادیانی اور یہ الیاس قادری میں کیا فرق ہے صاحب؟ وہ اس نے دوسری طرح سے دعویٰ کیا تھا، قادیانی نے ڈائریکٹ تو نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، الیاس وہ غلام قادیانی۔ ہاں بالکل بالکل بالکل، مگر اس نے اتنی حرکتیں نہیں کی صاحب، جیسا کہ ہم نے سنا ہے، کری تو ہیں لیکن ایسا نہیں کرا کہ اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا ہو زندگی میں، یا اپنا میلاد نامہ اس نے پڑھوایا ہو، ہاں یا لبیک یا قادیانی کے نعرے لگوائے ہوں۔ اتنی حرکتیں تو نہیں کی صاحب اس نے۔ اب جشن میلاد بتائیے، جب سے یہ تو شاید آپ تو عالم تاریخ میں کوئی ایسا عالم ہوا جس نے اپنا میلاد نامہ پڑھوایا پوری تاریخ میں؟ آج تک دنیا کی تاریخ میں جو ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد سے صحابہ کرام کے بھی یہ باتیں نہیں ہیں، صحابہ میں بھی یہ باتیں نہیں، تابعین طب تابعین کسی بھی، یعنی 14 سال کی تاریخ میں نہیں ہے صاحب، کسی میں بھی نہیں۔ اور یہاں تک کہ اپنے بال کو بھی کسی نے نہیں بانٹا اس طرح سے، اپنی زندگی میں نہیں بانٹا کسی بھی ولی نے آج تک۔ ہاں، اس میں تو مولانا قمر الزمان آزمی صاحب نے بھی بہت رد کیا ہے۔ ارے وہ تو بہت بڑے مقرر ہیں حضرت مولانا قمر الزمان آزمی صاحب، انہوں نے تو ان کی کھٹی کھڑی کر دی۔ انہوں نے تو بہت ہی رد کیا، بولا کہ اس کیس میں کرنا یہ بالکل ہی خرافات ہے، شریعت مطہرہ میں ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے، ایسے لوگوں کو اس طرح ان گناہوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اچھا، میں سمجھنے چاہ رہا ہوں، میں نے اپیل بھی کی ہے کہ بھائی یہ علماء سب میٹنگ کر کے ایک نئی جماعت کیوں نہیں بنا دیتے، تشکیل دے دے تو سب معاملہ ان کا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ پھر اگر ہندوستان کے سارے علماء یہ آواز اٹھا دیں کہ بھائی اپنی جماعت اب یہاں سے بنے گی، بس اسی کے ساتھ دیں آپ لوگ، تو علماء آواز اٹھا دیں تو ان کی جماعت تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ ہاں ہاں بالکل، علماء کیا ہے، پٹھو بنے ہوئے ہیں لوگ، ان کو پیسہ کھلا دیا نا اس میں۔ ہاں، اس میں اتنے پیسے دے دیے ہیں کہ لوگ خلق ملک ہو چکے ہیں۔ ارے صاحب، ایک مولوی انڈیا میں ایسا ہے جو بہت بڑا مقرر ہے، انگلینڈ امریکہ جاتا ہے، وہ انگلینڈ امریکہ کہیں تو وہ تو کہہ رہتا ہے الیاس قاضی بیچارہ مدینہ مدینہ کرتا رہتا ہے، بیچارہ مدینہ مدینہ، یعنی بڑی للچائی آواز میں۔ ارے وہ تو 2 کروڑ روپے دے دیں گے نا، 4 کروڑ، وہ تو اس کو سب سے بڑا ولی بنا دے گا، وہ مقرر تو اس کو سب سے بڑا ولی بنا دے گا۔ وہ تو دولت کماؤ مقرر ہے صاحب، دولت دے دے گا نا الیاس قاضی، تو کہہ رہا الیاس قاضی بیچارے کا سینہ مدینہ بنا ہوا ہے، بیچارہ مدینہ مدینہ کرتا رہتا ہے۔ یعنی وہ کوئی اس کی گستاخی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو ان کی آنکھوں پہ پردے ڈل گئے صاحب ان لوگوں کے مقرروں کے۔ یہ پیسے جو ہوتے ہیں، پیسے کے اندر اتنی اندھا پن ہوتا ہے، جسے دے دیا جاتا ہے دونوں۔ مگر اس معاملے میں ہم سب سے زیادہ بہادر اگر کسی کو مانتے ہیں تو مفسر اعظم ہند کو مانتے ہیں۔ مفسر اعظم ہند، خطیب ایشیا، اور حضرت مولانا قاری حنیف صاحب، وہ قاری ظہیر الدین صاحب جو خلیفہ مفتی اعظم ہند ہے، انہوں نے تو سن 1990 میں اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا بمبئی کے اندر۔ وہ پہلے مرد مجاہد ہیں جو کھل کے میدان میں سامنے آئے اور فوراً میٹنگ نہیں رکھ دیا مسجد بمبئی میں، اور 165 امام اس کے خلاف جمع کر کے سنی دعوت اسلامی بنائی۔ باقی اور لوگوں نے ایسا نہیں کیا صاحب، کلکتے والوں نے یا دلی والوں نے، اکیلے حضرت نے ہمت دکھائی، قاری ظہیر الدین صاحب نے۔ وہ بریلی کے کچھ عالم، بہت سے عالم ان کے خلاف ہو گئے کہ لو صاحب یہ، ارے جتنا کٹر سنی ہو اس کے بھی تم خلاف ہو رہا ہو، اسے بھی تم دیوبندی بنا دے رہا ہو، نعوذ باللہ۔ ارے کھلی ہوئی بات، ابھی جو ہے چندن جس نے یہ فتویٰ مانگا جو ہے کہ
मुहद्दिस तस्वीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा आज़ी साहब से हाँ जो ये बताइए कि इलियास कादरी अत्तारी जो दावत इस्लामी का मुबल्लिग है, उसके साथ रहना या उससे गलत मदद करना, उसके साथ नमाज़ें पढ़ना कैसा है? तो उन्होंने कहा कि उसके साथ रहना भी मना है, अलग अलग मिलना जुलना भी मना है। नमाज तो बहुत दूर की बात है, नमाजी तो हो ही भी नहीं उससे। साफ साफ कहा है ना, इससे बचना चाहिए। साफ साफ जो है कि बच्चों, आज भी मैं इन लोगों से कहता हूँ, यहाँ भी मैं कहता हूँ, जहाँ भी जाता वहाँ भी कहता हूँ, अरे आज तो अपने आप को बरेलवी कहलाते हो, सुन्नी कहलाते हो, तो आज भी जो है कि अख्तर रजा साहब के नायक है अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा आज़ी साहब, जो आज उनसे फतवा ले लो तो क्या बोलते हैं? अभी भी जिंदा है हज़रत ज़ियाउल मुस्तफा साहब, आज भी जिंदा है। हाँ वही बोल रहा हूँ, आज ही इसका फतवा मंगा लो। हाँ, तस्दीक तो कर लो, उधर भी हो, इधर भी हो, ये बात इधर भी उधर कर लो, उनसे खुल के तस्दीक कर लो। अरे हज़रत, मैंने तो ये तक वीडियो देखी है कि इस शख्स के बाद एक आदमी आता है इलियास काजी के पास, वो कहता है कि हज़रत वादे खिलाफी के बारे में क्या हुक्म है, तो ये जवाब देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी जवाब दिया। फिर कहता है हज़रत हम मदीने शरीफ गए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा था, यानी मुझे आने में देर हो गई, आपसे वादे खिलाफी मैंने कर दी या मैं आ नहीं पाया। अब मैं बता रहा हूँ मतलब यही था साफ साफ के अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा था। तो ये मैंने आंखों से देखा है वीडियो को, ये कुर्सी पे बैठा बैठा एक खबीर जवाब दे रहा है इलियास काजी, कुर्सी पे बैठा बैठा। हाँ। आप बताओ, आप विशाखापट्टनम मछलीपट्टनम में हो, मैं आपके यहाँ हूँ, आपका बैठो, मैं कहूँ बाद में बैठूंगा, पहले खुशखबरी सुनो। आपका क्या है? मैं कहूँगा मैं अजमेर शरीफ गया था, मैं वहाँ रात सो गया, तो ख्वाजगान ने बशारत दी कि जब कभी वहाँ मछलीपट्टनम जाओ तो काजी रईस साहब को मेरी तरफ से सलाम पहुँचा देना। आप तो उछल पड़ोगे इतने नहीं, क्या ख्याल है साहब? गरीब नवाज का नाम सुन के भी हर आदमी मुसलमान उछल पड़ेगा कि साहब गरीब नवाज मिल जाए। अंकल बैठा रहने का सवाल ही पैदा होता नहीं है, तो इंसान खड़ा हो जाता है। और इसको अल्लाह के रसूल सलाम भेजा और ये कुर्सी पे बैठ के जवाब दे रहा है, यानी ये बता रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। हाँ। इतनी बातें देखने के बावजूद ये रजवी लोग आज के जमाने के पिलपिले हो चुके हैं साहब, बिल्कुल पिलपिले, और बिल्कुल समझ लो कि वो तो खाली नाम के रजवी रह गए, वरना कट्टर रजवी के तो करीब नहीं आने दे। रजवी कैसे है? ये लोग रजवी अख्तर रजा का आखिरी मियां, जब उन्होंने कह दिया कि इसके पीछे नमाजी नहीं होती, इनके संघर्ष तो अलग अलग जाएगी। अरे उन्होंने तो साफ साफ कहा कि इनके लोगों ने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना, टीवी से, मदनी चैनल से। बताइए, ये तो बहुत पहले की बात है, इन्होंने वो बात को फिर खत्म कर दिया इन लोगों ने, लेकिन इसका इनको वो तो करना पड़ेगा ना, जवाब तो देना पड़ेगा ना, सब क्यों किया ये हाँ। अब ये लोग ना जो है कि रजवी भी नहीं है, बरेलवी नहीं है, सुन्नी नहीं है, कुछ नहीं है, सब अपने आप को तवज्जो दे। ये कैसे हो सकता है कि इलियास काजी तो साहब ज़काती है, सदकाती है, खैराती है। हाँ, और मिर्जा कादियानी की नकल में अब ये वही काम कर रहा है जो कादियानी ने पसे पर्दा मसीह मऊद होने का डायरेक्ट दावा किया कि मैं मसीह मऊद हूँ। इसने समझा कि अब ऐसे तो हम डायरेक्ट नबी कह नहीं सकते अपने आप को, इसलिए ये काम करवाओ कि अपने बाल को बाल मुबारक कह के बटवाओ, मीलादनामा पढ़वाओ, लब्बे या अफ्तार के नारे लगवाओ, और बहुत सी बातें ऐसी ऐसी हैं जो मिर्जा कादियानी से ही मिलती जुलती हैं साहब, बिल्कुल। अब बोलते हैं ना अफ्तार की आमद मरहबा। हाँ, ये तो मिर्जा कादियानी ने भी कभी नहीं करवाया ऐसा, मिर्जा कादियानी ने भी इतना नहीं करवाया साहब। वो मैं मानता हूँ कि इसने जो भी गुमराहियत करी, देखिए इस तरह की गुमराहियत नहीं इख्तियार की जो इसने करी है। हाँ, इससे भी कम ही जो दायरे में इससे कम ही था वो। अब बताओ कि इलियास की आमद मरहबा, अब ये अल्लाह के रसूल की तो बराबरी कर रहा है साहब, और क्या है? अब क्या है? वो इसका दलाल है खास इमरान अत्तारी, वो जो बहुत बड़ा कारोबारी, इसको बताते हैं कि बहुत बड़ा कारोबार है। क्या कारोबार है? एक साहब वो अभी कुतुब अमेरिका हजरत अशरफ पटेल साहब ने सवाल उठा दिया, क्या कारोबार है तुम्हारा, वो हमें तो बताओ, कौन सा कारोबार है, कौन सा धंधा है तुम्हारा, यश में जिंदगी है गुजार रहा हो, यानी तुम्हारा 3 करोड़ में बताया दुबई से, ये कमालूम कहाँ से 3 करोड़ में, तो उसका फर्नीचर आया था ये अब्दुल हबीब, ये इमरान अत्तारी का या हबीब अत्तारी का, इन दोनों में से किसी का बताया। उनकी क्लिप चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है। कुतुब अमेरिका जनाब अशरफ पटेल साहब को सिपाहीनामा दिया गया वर्ल्ड इस्लामिक मिशन की तरफ से, लंदन की तरफ से। तो वो उन्होंने वो ये एक तो ये कुतुब आलम हजरत मौलाना काजी हनीफ कुरैशी साहब इसके पीछे पड़ गए, और वो हनीफ कुरैशी साहब बिल्कुल इससे हार नहीं मानेंगे साहब।
हाँ दावत इस्लामी वालों ने कई लोगों को शायद यानी अजहरी मियां ने खुद बताया कि इन्होंने मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे लोगों को इन्होंने मारा है, बम्बई में मारा भी अजहरी मियां के आदमियों को, ये दावत इस्लामी वालों ने खुद अजहरी मियां बता हाँ हाँ जी और सही ये है। मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद को शाहजहांपुर में घर में घुस के मारा था दावत इस्लामी वालों ने। हाँ हाँ कई जो भी मसाजिदें ज्यादातर जिसमें जो है कि सुन्नी हनफी इमाम थे, हाँ। उन लोगों के पास फैजान सुन्नत दे जाके रखाना, चंद दिन वहाँ जाना और बाद में उस व्यक्ति को कब्जा करना, उस इमाम को मार के भगा देना। हाँ, मार के भगा दिए दावत इस्लामी वाले हैं। इस तरीके से कर्नाटक में तकरीबन 100-150 मसाजिदों को कब्जा किया है। 100-150 और यहाँ 100-150 मसाजिदों को इमाम को भगा करके उनकी मस्जिदों में जाते, फैजान सुन्नत रखते हैं, महीना 2 महीने के बाद उस इमाम को जो है कि मार के भगा देते। और ये यहाँ से जो है कि वहाँ पाकिस्तान में भेज देते। हमने इतनी मस्जिदों में जो है कि वो मुबल्लिग का काम किया और इतनी मसाजिदें हमारे जो है कि दावत चलानी है। यही काम ये राजस्थान में करने वाले हैं। कोटा में एक बोर्ड लगाया इन्होंने स्टेशन की मस्जिद में, फैजान रजा दालू। तो सबसे बड़ा एहसान हिंदुस्तान में अगर ख्वाजा गईनवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का है, तो उनका तो इसने ये कोटा की जाम मस्जिद के पास में जो मस्जिद है उसमें मदरसे चलाते हैं, उसने ख्वाजा गईनवाज का नाम तक नहीं लिखा बोर्ड में इन लोगों ने। यानी आप अंदाजा लगाओ कितने बड़े मक्कार हैं कि फाजिल बरेलवी का नाम लिखा है। 24 लगभग 24 फीट का बोर्ड है, 20 या 24 फीट का। दिखाना चाह रहा है कि इतना बड़ा बोर्ड आज तक किसी ने भी नहीं बनवाया जितना बड़ा बोर्ड हम बनवा रहे हैं फाजिल बरेलवी के नाम पर। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी नाम नहीं, ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम, ना हजरत अली का नाम, ना हजरत इमाम बाकर का नाम, किसी का नाम नहीं। यहाँ तक कि हजरत ख्वाजा साहब का सबसे बड़ा एहसान हिंदुस्तान में, उनका भी नाम नहीं बोर्ड में। बस फिर डालू मतलब ये बताना है कि देखो हम हैं आला के मानने वाले। और इन मौलवियों में तो बाद में ये अकीदा भी गढ़ दिया कि जिस मस्जिद के गेट के ऊपर आला हजरत का नाम अहमद रजा लिखा रहेगा तो उस मस्जिद में शैतान नहीं आएगा। ये भी कह रहा है, ये भी इन लोगों की तजवीज है दावत इस्लामी वालों की। हाँ अब देखिए जहाँ पर यानी रजा लिखा रहे तो शैतान नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह के नबी का नाम लिखा रहे तो शैतान आएगा। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। ये दावत इस्लामी वालों ने, ये रजी लोग, बरेली लोग, हाँ ये बरेली वाले तो साहब ये तो इन लोगों को ऐसा लगता है हजरत के अल्लाह ने जमात की नमाज से महरूम कर दिया है मक्का शरीफ मदीना शरीफ की। ये तो साफ कहते हैं कि वहाँ नमाज नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ कि जब नमाज नहीं होगी तो फिर उनका निकाह भी नहीं हुआ तुम्हारे हिसाब से, इमामों का भी नहीं हुआ, जो वहाँ पर सहाबा किराम की औलाद है मक्का शरीफ मदीना शरीफ में उनके भी निकाह नहीं हुए तुम्हारे हिसाब से। तुम तो कहते वो वहाबी हैं, तो वहाँ भी कई गवाही भी मानी नहीं जाएगी तुम्हारे हिसाब से, फिर उनका निकाह भी नहीं हुआ तो बेनिकाही औलाद पैदा हो रही है इनके हिसाब से। ये दावत इस्लामी वालों के हिसाब से, दावत इस्लामी वाले मुफ्ती भी यही मानते हैं कि मक्का मदीने के इमाम मुसलमान नहीं है, वहाँ के मुअज्जिन मुसलमान नहीं। दावत इस्लामी के मुफ्ती भी यही मानते हैं। और ये दावत इस्लामी वाले मुफ्तियों का, इलियास काजी का ये अकीदा है इनके मानने वालों का कि वहाँ वालों का निकाह भी नहीं हो रहा, बगैर निकाह के रहना है वहाँ के लोग। सहाबा किराम की जो औलाद हैं, यहाँ तक कि जो सैयद हैं उनको भी ये मुसलमान नहीं मानते दावत इस्लामी वाले। अब बताओ, आप भी जानते हो कि सैयद जब बिलग्राम में है, मारेरा में है, तो क्या वहाँ सैयद नहीं है मक्का शरीफ मदीना शरीफ में? अरे वहीं से तो सैयद आए, ख्वाजा गईनवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वहीं से तो तशरीफ लाए। दावत इस्लामी वाले उनको भी नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते कि जो वहाँ रहते हैं वो, यानी वहाँ भी मानते हैं, वहाँ भी कोई मुसलमान नहीं मानते। अच्छा ये कहते हैं नहीं वो सुन्नी बहुत हैं, हम मानते हैं। तो सुन्नी है तो वो कहाँ नमाज पढ़ते हैं? जिनको तुम काफिर कह रहे हो उन्हीं के पीछे वो नमाज पढ़ते, तो तुम्हारे हिसाब से तो वो मुसलमान ही नहीं हुए साहब। क्या ख्याल है साहब? हाँ बिल्कुल। आपको मालूम है कि अरब में मक्का शरीफ मदीना शरीफ में घर में पढ़ने का रिवाज ही नहीं है। वहाँ पर एक मेरे ख्याल से 20 लाख की आबादी है, 20 घर ऐसे नहीं मिलेंगे जो घर में नमाज पढ़ते हों। हाँ सही है वो अलग बात है कि वहाँ तो रिवाज ही नहीं है, वहाँ तो घर में, वहाँ तो मस्जिद में ही पढ़ने का रिवाज है साहब, हरम शरीफ में पढ़ते हैं। अब ये क्या धोखा देते हैं, नहीं वहाँ सुन्नी बहुत है। अरे भैया कौन से सुन्नी है जिन्हें तुम सुन्नी मानते हो? वो तो टोटल सुन्नी है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से कौन से सुन्नी वहाँ पर है जो हमें चल के बताओ। हम तो उम्र का टिकट देने को तैयार है, 20 आदमियों का टिकट मैं देने को तैयार हूँ, मैं दिलवाऊंगा। चलो पहले 20 घर दिखा दो पूरे मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जिन्हें तुम सुन्नी मानते हो, वो सुन्नी मिल जाए मक्का शरीफ में। अच्छा मिल जाएंगे, 20 घर मिल जाएंगे पूरे मक्का मदीने में इनके हिसाब से सुन्नी? नहीं मिलेंगे। अच्छा हजरत एक बात है, हाँ। वो सुन्नी लफ्ज कहाँ से आया? तो कौन सा लफ्ज?
सुन्नी जो बोलते हैं सुन्नी, तो सुन्नी लफ्ज कहाँ से आया ये? हाँ, ये आपने बहुत क्या है? अच्छी बात बताई। सुन्नी लफ्ज ये लोग शियाओं के मुकाबले निकाला है। हाँ, ये आपने अच्छी तजवीज, ये एक तहकीक वाली बात बताई है। ये मेरे भी ذہن में नहीं थी बात। अब आप बताइए सर, आप तबसरा करो साहब। अब ये सुन्नी ये अपने आप को कहते हैं, तो देवबंद भी तो अपने आप को सुने। जो मौलाना अशरफ अली थानवी अपनी किताबों में जहाँ भी अपना नाम लिखते हैं तो वहाँ लिखते सुन्नी मोहम्मद अशरफ अली। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सुन्नी तो थे, वो तो शिष्टियत से पूरी। तो अब जो ये अभी तुम भी सुनने करते तो वो भी सुनने का, सुनने उनमें क्या फर्क है? जो तुमने जो है जो फिर ये बताया करते हो, बस ये फर्क हो गया, ये सुन्नी बरेलवी हो गए, वो सुन्नी देवबंदी हो गए। तो उनको सुन्नी कहते ही नहीं है। सुन्नी सहीहुल अकीदा, और सुन्नी सहीहुल अकीदा तो वो भी सुन्नी सहीहुल अकीदा लिखते हैं। वो भी सुन्नी सही अकीदा नहीं था, वो तो पीरी मुरीदी के कायल थे। हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह खलीफा थे वो, जो ही था। हाँ जी। हजरत मैंने तो उनके एक खलीफा को देखा है, मुहीद सुन्ना हजरत मौलाना शेख अबराउल हक साहब हरदोई वाले रहमतुल्लाह अलैह। एक एक सुन्नत पे अमल करवाते थे, एक एक सुन्नत पे। बल्कि इतने सुन्नत के पाबंद थे कि अगर एक बार जलसे में कहीं चले गए तो बेदाढ़ी वाला कोई सदर था तो आपने कहा मैं किराया वापस दे सकता हूँ, मैं जाऊंगा वापस। अगर ये सदर रहेगा बेदाढ़ी वाला सदर तो मैं यहाँ पर जलसे में शिरकत नहीं करूंगा। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें मनवाया, या तो सदर से सदारत को हटाया, कहा हजरत आप न जाइए कि हम सदर को हटा देंगे। जब जाके आपने मंजूर किया था जलसे में रहना वापस। ये शायद मद्रास की बात थी। हजरत मौलाना अबरार साहब ये इनके खलीफा थे थानवी साहब के, जिनके खलीफा इतने सुन्नत के पाबंद हो साहब, अंदाजा लगा हुआ। मैं खुद हरदोई रुका हूँ, रात रुका हूँ हजरत मौलाना अबरार साहब हरदोई वालों के। हरदोई उनके यहाँ लिखा हुआ था कि हर शख्स 80 बार वहीं बैठे बैठे दरूद पढ़े असर के बाद। ये असर से मगरिब तक का मामूल था, बाकी औकात में कितने दरूद पढ़ते होंगे लोग। मैंने खुद वहाँ पर तख्ती में लिखा हुआ है, आज भी लिखी हुई तख्ती, 80 बार 80 बार तालिब इल्म वहीं बैठे बैठे दरूद पाक पढ़े। माशाअल्लाह। अब ये लोग इल्जाम लगाते हैं, अरे वो तो खड़े होकर सलाम पढ़ने को मना करते हैं, बाकी बैठ के सलाम पढ़ने को थोड़ी मना करते हैं। आप दरूद शरीफ पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो या बैठ के पढ़ो, लेकिन अलग अलग पढ़ो आप। वो इससे मना करते हैं कि ये जमात बनाकर जो तरीका निकाला है साहबा किराम में नहीं था। तो वो तो तरीका इनकार कर रहा है, वो दरूद सलाम का थोड़ी इनकार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो तरीका तुमने गलत अपनाया वो उस तरीके का इनकार है, दरूद पाक का इनकार नहीं है। दरूद पाक का इनकार करने वाला तो काफिर हो जाएगा, जो मुतलक इनकार करेगा। वो तो सिर्फ तरीका इनकार करना है। बिल्कुल बिल्कुल, जो तुमने तरीका अपनाया है और फिर फाजिल बरेलवी पे तुम नबी के साथ सलाम भेजो, तो तुम अल्लाह के रसूल के साथ में फाजिल बरेलवी पे सलाम भेजो। यानी साहबा किराम से बड़ा इनको बताना चाहते हो। साहबा किराम का नाम गायब, अहले बैत का नाम गायब, और अल्लाह के रसूल के ऊपर सलाम भेजने के बाद तुमने डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा आला हज़रत पे लाखों सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। ये भी तो एक मसला है ना। इसको तो देवबंद वाले नहीं, सुन्नी भी गवारा नहीं कर रहे, जो बदायूं वाले हैं और भी लोग हैं, वो सुन्नी लोग भी नहीं मान रहे, मकानपुर वाले। यार ये आला हज़रत पे सलाम भेजने का क्या तरीका है? अरे एक के बिहार में जिला मुजफ्फरपुर में एक गांव है पोखरैरा शरीफ। हाँ मैं गया हूँ वहाँ पर। हाँ, तो पोखरैरा शरीफ के जो है कि वहाँ का जो माहौल है वो ऐसा है कि जब रिश्ते के लिए कोई जाते हैं, लड़का के लिए या लड़की के लिए, तो वो पूछते हैं भाई आपका लड़का पढ़ा हुआ है या नहीं है, या आपकी लड़की पढ़ी हुई कितने की है, जो पढ़ी है कि नहीं है। तो वो जवाब में बोलता है अरे तुम मेरे लड़का और लड़की के बारे में पूछ रहे हो, हमारे यहाँ की तो मुर्गी पड़ी हुई है। मुर्गी? अच्छा, हमारे गांव में तो मुर्गी पड़ी हुई है, तुम इंसान की बात कर रहे हो। यानी उसके कहने का मतलब ये था कि हमारा गांव, हमारे गांव में एक घर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस घर में पढ़ा हुआ इंसान नहीं मिले। हाँ सही बात, सही। उन्हें कहने का मतलब ये था, तो उन्होंने इस बात से मिसाल दिया रहे हमारे यहाँ तो मुर्गी भी पड़ी हुई है। हाँ मैं गया था। हाँ ये क्या उस गांव में इख्तिलाफ हो गया, बरेली से लेकर के वो बस ये लेकर के आला हजरत को लेकर के, मसलक का लेकर के, और हर वक्त जो है कि उस आला हजरत का ही जो है कि ये लेकर के जहाँ जलसा जुलूस हो तो मसलक। अरे काम वहाँ मदरसा का काम मुहिब्बे रसूल जो है कि वहाँ के सिलसिले में मुहिब्बे रसूल। हाँ वो जो बहुत बड़े पाइल बुजुर्ग जो है मेरे क्या वो थे मौलाना शहीदुर रहमान साहब थे वहाँ पर। हाँ मौलाना शहीदुर रहमान जो है कि रहमान, उनसे बड़े मौलाना उबैदुर रहमान। हाँ दोनों भाई थे। ये दोनों भाई में भी इख्तिलाफ।
अरे बहुत इख्तिलाफ था, वो एक दूसरे को गवारा नहीं करते थे। हाँ, ये फतवाबाजी हो चुकी थी। अच्छा, वहाँ पर भी इख्तिलाफ हुआ कि ये क्या आला हजरत का तुम जिक्र कर रहे हो यहाँ पर जलसे में, जी वहाँ पर इख्तिलाफ हुआ है ये पोखरेरा में। हाँ हाँ, तो वो इस वहाँ जो है कि हुमैदुर रहमान साहब का बड़ा लड़का मोहम्मद रजा, हाँ 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 मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रजा, हाँ हाँ। उन्होंने इतनी बाइकाट किया आला हजरत के, इतनी बाइकाट किया, अच्छा, इतनी बाइकाट किया जी, बल्कि क्या यानी जो है कि आला हजरत जो है कि मसलक का नाम लेकर आला यानी दीन जो भी फैला तो आला हजरत ने फरमाया, पर उन्होंने फैलाया। उससे पहले दीन नहीं था, उससे पहले इस्लाम नहीं था, उससे पहले मुसलमान नहीं था। क्या बात, उससे पहले हाँ 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 सही। क्या इसका रसूल नहीं था? क्या 13 साल तक लोग आशिक रसूल पैदा नहीं हुए? भाई ये 1400 साढ़े 1400 साल से लेकर अब ये 100 सवा साल से मुसलमान है, सुन्नी है, और उससे पहले क्या कोई मुसलमान नहीं है? नहीं, वो ये कह रहा हूँ कि इसका रसूल क्या 1300 साल वाले मुसलमानों में नहीं था? नहीं, तो ये लोग कहते हैं ना आशिक रसूल बनाया, तो क्या 1300 साल के लोग क्या आशिक रसूल नहीं बनाते थे? क्या वो आशिक रसूल नहीं थे? ख्वाजा गरीब नवाज लश्करी, हजरत निजामुद्दीन औलिया जिसमें है हजरत मुजाहिद जो है कि निजामुद्दीन औलिया है, और हजरतुद्दीन बख्तियार काफी है, काफी हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह है, अब ये है हजरत बड़े बड़े औलिया कराम कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी ने इस्लाम फैलाया है और आला हजरत ने बचाया है। क्या बचाया है? इनके आने के बाद तो और इख्तिलाफ पैदा हुआ है, बदायूं में इख्तिलाफ पैदा हुआ, बदायूं वालों ने इन पर मुकदमा कर दिया था जुमे की अजान अंदर से बाहर देने के ऊपर। बचाया नहीं है, और ज्यादा फैलाया है, और ज्यादा जो है कि बदमजहबी फैलाया है। हाँ 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 हाँ, बचाया नहीं था, बदमजहबी फैलाया गया। ये हजरत जो आप बता रहा हूँ ना, ये मैं एक बार कछोटा रात रुका था, हजरत मौलाना इजहार अशरफ साहब ने मैं उनके पास बैठ के बात की, हजरत मौलाना इजहार अशरफ साहब के पास। मुजद्दिद कहते हैं, ये मुजद्दिद क्या जब से ये आए हैं या मुजद्दिद इनको बनाए जब से और तो और देवबंदियत बढ़ गई, और मुझसे कह रहे थे कि और देवबंदियत बढ़ गई इनके आने के बाद से। वही बात मैं कर रहा हूँ, बदमजहबी फैला है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम बचाया है, बचाया है, तो और जो है कि इख्तिलाफ पैदा हुआ है इनके आने के बाद। बदायूं बरेली में इख्तिलाफ, बदायूं कछोटा में इख्तिलाफ, बरेली कछोटा में इख्तिलाफ, और मकर में इख्तिलाफ, और फिरंगी महल से इख्तिलाफ। फिरंगी महल वालों पे 110 तरह से फतवा लगा दिया फाजिल बरेलवी ने कुफ्र का, अल्लामा अब्दुल बारी फिरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह पर 110। अब 110 साल से कोई काफिर होता है साहब? 110 साल से कोई काफिर हो सकता है क्या? इन्होंने फाजिल बरेलवी ने पूरी लिस्ट बना दी कि तूने मुस्लिम लीग कहा तू काफिर है, तूने ऐसा कहा तू काफिर है, तूने ऐसा पूरी लिस्ट बना के दे दी। फतावा रज़िया में है हुआ तो लिस्ट मिल जाए। अफ़वात अब्दुल बारी जिसमें वो किताब है ना, अफ़वात अब्दुल बारी। अब तो बरेली और जो है कि मारहरा में भी तो इख्तिलाफ है। अरे साहब, ये तो अब जाके थोड़ा बहुत बरेली मारहरा का मामला खत्म हुआ, वरना पहले तो अलग हो गया था। अभी 20 साल पहले अलग होने वाले थे एकदम। हाँ, मैं खुद इलाहाबाद काउंसिल में था, वो सेमिनार में इलाहाबाद वाले में जो नमाज के ऊपर हुआ था, नमाज चलती ट्रेन में होगी कि नहीं। तो फिर उसमें नाजिर अशरफ साहब है ना नागपुर के, इन्होंने खुद कहा था कि मेरे सामने की बात है कि अगर यहाँ मारहरा शरीफ नहीं जाते, ये बात उठ रही है, लोगों में आ रही है। तो फिर उनके लड़के उठे कि नाजिर अशरफ साहब आपने ये बात यहाँ उठाई है, मतलब ये उठाना नहीं था सबके सामने, ऐसा कुछ कि आपने उठाई। अगर आप जिम्मेदारी लो कि वहाँ उलमाए बदायूं नहीं आएंगे मारहरा में, तो हम फिर अपने वाले साहब को ले जाके मारहरा शरीफ ले जाने को तैयार है। मतलब है कि सुन्नियों से धक्का दिलवाएं, अब बदायूं वाले सुन्नियों को आना बंद करवाएं, फिर ये आएंगे साहब बरेली से। ये ऐसे तो क्या बदायूं वाले क्या मुसलमान नहीं है? वो मेरे सामने की बात है साहब। इलाहाबाद में इन्होंने कहा था, इनके बेटे ने, हज़री मियां साहब के बेटे ने, कि नाज़िर अशरफ साहब आपने जो बात कही है, या तो आप ये जिम्मेदारी लो कि वहाँ पर बदायूं वाले नहीं आएंगे। जब उस जमाने में इमाम अहले सुन्नत ताजदार अहले सुन्नत हजरत अल्लामा उर्शद हक साहब बदायूं रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे जब गालिबन। अच्छा, और अल्लामा उर्शद हक बदायूं जैसा आलिम हुआ ही नहीं अभी इस जमाने में, करीब के जमाने में है। क्या ख्याल है साहब? नहीं सही फरमाया। इस जमाने में अल्लामा उर्शद हक का सानी नहीं है कोई अभी भी मौजूदा दौर में, शायद ही मुश्किल है मिले। मेरे सामने की बात है कि उन्होंने कहा था नाज़िर अशरफ साहब ने कि अज़हरी मियां माने जाते मारहरा शरीफ, यानी मारहरा शरीफ 20 साल तक नहीं गया अज़हरी मियां, इंतकाल से भी 15 साल या 20 साल पहले तक।
اب یہ کیا ہوگا، یہ خانقاہ والے کیا ہوگا، بیچارے ڈر گئے بریلی سے، بریلی والوں نے ان کو اتنا ڈرا دیا جیسے بی جے پی والوں نے ڈرا دیا نا ہندوستان میں دوسرے لوگوں کو، ایسے ان لوگوں نے ڈرا دیا۔ کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ اب ان میں ایک ہی مرد مجاہد پیدا ہوا ہے ماریرا میں، قطب ماریرا سلطان المجاہدین حضرت مولانا سید سبطین حیدر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جی 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 مولانا سید سبطین حیدر میاں وہ بالکل نہیں ڈرتے، اور سلطان المجاہدین قطب ماریرا ہیں۔ ابھی میں یہی نام لے کے بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو کہ وہاں سے ماریرا سے، ہاں یہی، لیکن آپ نے فرما دیا، یہی مرد مجاہد ہے، یہی مرد میرے زمانے کا جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ بریلی میں اعلان کر دیا تھا، آ گیا ہے اب تمہارے سامنے، ایسا کچھ اعلان کیا تھا تو ان کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے بریلی میں، بتایا ایسا کچھ سنا ہے کہ بتاؤ ایک آل رسول کے اوپر پتھر برسانا کتنی غلط بات ہے۔ اب یہ اکیلے ہمت نہیں ہار رہا حضرت مولانا سید سبطین حیدر میاں صاحب، اور اگر لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے نا ہندوستان میں تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا صاحب، دیکھ لینا۔ مجھے قطب بدایوں حضرت مولانا سید سالم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لڑکے ابھی پیر اعظام میاں صاحب ہیں، یا تو لوگ ان سے مرید ہو جائیں یا سید سبطین حیدر میاں صاحب سے مرید ہو جاتا، تو انقلاب ہو جائے گا۔ یا ادھر پیر ثقلین میاں صاحب قطب بریلی حضرت مولانا سید پیر ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قدی نشین حضرت غازی میاں صاحب، آپ جانتے ہوں گے پیر ثقلین میاں صاحب؟ جی 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 بہتر طریقے سے جانتا ہوں، بہت بڑی بزرگ ہستی تھے صاحب، بزرگ۔ ہاں جی، لیکن اب ان کے مرید بھی تھوڑے پلپلے ہیں، کر رہے نہیں ہیں، سب مرید کر رہے نہیں ہیں، سب مریدوں کو کر رہا ہو جانا چاہیے۔ اور شقیق صاحب کے نام پہ مدرسے بنائے، دارالعلوم بنائے، امام حسن علیہ السلام کے نام پہ بنا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے نام پہ، اور ثقلین کی یاد میں بنا، مگر نام رکھیں دارالعلوم حسنیہ حسینیہ یا امام زین العابدین امام باقر، کیونکہ بریلی والے حضرت امام زین العابدین کے نام پہ نام نہیں رکھتے، نہ امام باقر کے نام پہ نام رکھتے۔ یہ بھی ایک فرق معلوم ہو جائے گا کہ دیکھو بریلی والے امام زین العابدین کے نام کے جلسے تو نہیں کرتے، امام باقر کے نام، یہ پبلک میں ظاہر ہوگی صاحب یہ بات، کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں بالکل بلا وجہ یہ دیوبند والوں کے پیچھے بڑے رہتے ہیں۔ ارے دیوبند والوں میں تو ایک سے ایک محدث، ایک سے ایک عالم ہوئے ہیں، امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری جیسا عالم ہی نہیں ہوا ہے دیوبند میں۔ بلکہ اب ایک بات جو دیوبند کی بات آ گئی تو یہاں پہ وہ ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں میں، دیوبند کے علماء اپنے آپ کو دیوبند کہلانے پر فخر حاصل فرماتے ہیں، فخر کرتے ہیں، لیکن اظہری میاں کی گرفتاری جب ہوئی تھی سعودی میں تو اس وقت وہ ایک کتاب ہے اظہری گرفتاری، ایک کتاب ہی ہے، کتاب ہے، کتاب، ہاں وہ ایک کتاب ہے، اس میں جو ہے کہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اختر خان بریلوی آپ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بریلوی مت کہو، میں بریلوی کہلانے پر جو ہے کہ خوش نہیں ہوتا، مجھے بہت رنگ مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے، مجھے اہل سنت والجماعت کہو۔ پھر کہا کہ وہ آپ لوگ حنبلی ہوں میں حنفی ہوں، یہ کہ باتیں بنا دیا کہ اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے تو تم جمعہ تم نے 40 دن میں جمعہ نہیں پڑھا، کیا حکم ہے جمعہ چھوڑنے پر؟ جو چھوٹے تمہارے 40 دن میں، کیا خیال ہے صاحب؟ ایک بات یہاں پر میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بریلوی کہلانے پر ناراض ہوتا ہوں، مجھے بریلوی مت کہا جائے۔ اب اچھا یہ تو بتائے وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلانے میں ناراض ہوئے، لیکن دیوبند وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اپنا وہ علماء وہ فخر کرتے ہیں دیوبند کہلانے پر، دیوبند کا علماء وہ اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں وہ، لیکن انہوں نے جو ہے کہ بریلوی کہلانے پر اپنی ناخوشی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب کے جو بریلوی ہے وہ کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بریلوی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں بریلوی ہوں؟ حضرت علماء دیوبند کا سکہ ہے، وہاں بھی وہ مکہ شریف مدینہ شریف کے علماء سے رابطے ہیں ان کے، علماء دیوبند کے آج بھی۔ حضرت شیخ یونس جونپوری سب سے بڑے محدث سے ابھی انتقال ہوا 2017 میں، ان کے ماننے والے تھے عرب کے اندر صاحب۔ آپ کو تو معلوم ہوگا دیوبند میں بڑے بڑے محدث مفسر پیدا ہوئے ہیں صاحب، کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل صحیح فرمایا۔ مفتی شفیع صاحب کتنے بڑے مفسر تھے جنہوں نے معارف القرآن لکھی تفسیر میں، اور ابھی جو موجودہ دور میں شیخ الاسلام ہے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، بہت بڑے قابل عالم ہیں، یہ سیاح عالم ہے، ان کا دبدبہ ہے صاحب پوری دنیا میں، ان کا اور اس سے آپ لے لو ہمارے یہاں امام المقررین حضرت علامہ سید طاہر القادری صاحب ہیں، سید طاہر القادری صاحب نہ دیوبند والوں میں آتے نہ بریلی والوں میں آتے، تو سیدھا اسلام دکھاتے ہیں۔
हाँ कितने बड़े आलिम बिल्कुल साहब ये ताहिरुल काई साहब, जी। उनकी कोई सानी नहीं है अभी अल्लामा ताहिरुल काई साहब का? हाँ, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब, प्रोफेसर प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी। कितना इल्म है साहब हैं? नहीं तो बहुत इल्म है, बहुत अच्छा तजर्बा है, बहुत अच्छी तहकीक है, बेहतरीन तहकीक है। ये दावत इस्लामी वाले उनको मुसलमान नहीं मानते, इनके मुफ्ती अल्लामा ताहिरुल काई साहब को काफिर मानते हैं, समझ लो। बरेली से जो थे उनको काफिर मानते हैं दावत इस्लामी वाले। कहते हैं इलियास काजी कहा कि मैंने तो आंखें आला हजरत पे आंखें बंद कर ली हैं। ये नहीं कहा कि मैंने इमाम बाकर की जो इमाम बाकर की तालीमात है, इमाम जाफर की तालीमात है, ये कभी नहीं कहा उसने। यही कहा हजरत ने जो लिखा है मैं उस पर ही अमल करूंगा। मतलब साफ कह दिया कि हालात पे मैंने आंखें बंद कर ली। आला हजरत के ऊपर जो आंखें बंद कर दी तो अजहरी लिया ने क्यों दूर कर दिया तुमको? फिर अजहरी ने इसकी मुखालिफत क्यों की जब हालात पे आंखें बंद कर ली? क्या ख्याल है? वही बात बरेली से तो सनद नहीं मिली है, सब इलियास काजी को बरेली से सनद नहीं मिली है, आज भी सनद नहीं मिली। नहीं आज भी सनद नहीं है उसकी बात। अरे साहब तो आलिम नहीं है ना, वो तो आलिम ही नहीं है, गैर आलिम है। गैर आलिम है ना, आलिम है ना काजी। वो तो उसने फतवे के जवाब में अब एक नया सिस्टम निकाला, तो गौर करना, वल्लाह व रसूलु आलम कहलवाता है ये अपने मुफ्तियों से। जबकि आपने फतवा भी अच्छी तरह पढ़ी होगी, खुद फाजिल बरेलवी ने हर सवाल के जवाब में यही लिखा, वल्लाह आलम बिस्सवाब। तमाम बड़े बड़े मुफ्तियों ने, मुफ्ती शरीफ अल-अकमजदी ने, खुद फाजिल बरेलवी ने पूरी फतावा रजिया में वल्लाह आलम बिस्सवाब लिखा है। तो अब ये अपने मुफ्तियों से क्यों कहलवा रहा है वल्लाह व रसूलु आलम? मुफ्ती आज़हीन जो है उन्होंने भी अपनी किताब फतावा मुस्तफ़विया में सिर्फ वल्लाहु आलम वल-सवाब, बस वल्लाहु आलम, कहीं पर भी वल्लाहु रसूल आलम कहीं पर भी नहीं मिली, नहीं लिखा। अब वो तो हदीस शरीफ में जो जिक्र है, साहबा कहते थे वल्लाहु रसूल आलम, वो तो अल्लाह के रसूल की हयात मुबारक में साहबा ऐसा कहते थे। तो ये तो सामने बैठे, वो सामने मौजूद थे और वहाँ के जो है जो वहीं के वहीं मौजूद थे, इसलिए वो बात वो भी खास लोगों में वो बातें आ जाया करती थी, अवाम नास में भी नहीं वो बातें हुआ करती थी। हाँ, लेकिन बात के उलमा ने, जब फाजिल बरेलवी ने भी तो हदीस पढ़ी होगी, लेकिन उन्होंने वल्लाह आलम क्यों लिखा? अब वल्लाह रसूल आलम का मतलब ये हो जाता है, मैं बताता हूँ कि अल्लाह रसूल दोनों इल्म में बराबर हैं। तो इल्म में बराबर, अल्लाह के इल्म अल्लाह का इल्म अलग है, अल्लाह के इल्म की तो खुद फाजिल बरेलवी ने मिसाल दी कि अल्लाह के इल्म के समंदर में से एक कतरा, उसका करोड़वां हिस्सा समझ लो, ये अल्लाह का इल्म मिला है। जी। और ये इलियास काजी ने एक नया सिस्टम यूँ शुरू करवाया कि लोग मुझे सबसे बड़ा सुन्नी समझे। हालांकि ये अपने आप को सुन्नी बताने के लिए सब करवाता है साहब ये काम। अभी ये नए काम वो कौन है इनका, मुफ्ती कासिम अत्तारी कहता है कि हजरत सुलेमान अस्सलाम ने हजरत आसिफ बिन बरखा से मदद मांगी। आसिफ बिन बरखा से मदद मांगी, कब मदद मांगी? वो तो एक तलब फरमाता है कि कौन है जो बिल्किस का तखत लाए, वो तो कुरान में लिख रहे अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कुरान में लिख रहे। तो आसिफ पहले तो इफरीत जिन ने कहा कि मैं लाऊंगा अनाती का भी कबल अन तक़ूम मकामिक। फिर आसिफ बिन बरखा ने कहा कि आपकी पलक झपकने से पहले मैं ले आऊंगा। तो फिर आपने मदद किया। तो वो तो आपने तलब फरमाया था, मदद थोड़ी मांगी। वो मुफ्ती कासिम अत्तारी कह रहा कि मदद मांगी थी सुलेमान साहब ने, तो हम भी वलियों से मदद मांग सकते हैं, मतलब ये था। तो मैंने कहा कल को ये कहने लग जाना कि हजरत हुदूद से भी मदद मांगी थी सुलेमान साहब ने, वो तो पानी बताता था हुदूद, तो क्या ये कहा जाएगा कि हुदूद से मदद मांगी थी हजरत सुलेमान साहब ने? हजरत सुलेमान साहब के साथ रहता था हुदूद? क्या ख्याल है साहब? तो मैंने ये जवाब दे दिया है इमाम हरम मस्जिद नबवी के इमाम के बारे में कि आंखें बंद करके बिला कराहत नमाज होगी, जो भी हाजी बिला कराहत नमाज है। क्या ख्याल है साहब, मैंने सही कहा था? नहीं, बिल्कुल सही। अब कितना बड़ा सवाब है साहब, 27 लाख नमाजों का सवाब मैंने बताया। इमाम गजाली के कौल से इस्तेदलाल किया। इमाम गजाली कहते हैं कि जमात से नमाज का सवाब 27 गुना हो जाता है। तो वहाँ पर हरम शरीफ में अकेले पढ़ोगे तो 1 लाख मिलेगा, और जमात से पढ़ोगे तो 27 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। तो ये इलियास काजी के मुफ्ती हैं, उनको मुसलमान नहीं मानते, काबे शरीफ मक्के शरीफ के रहने वालों को, मदीना शरीफ के। और ये भी इनका अकीदा हो गया है कि वहाँ के लोग मुसलमान नहीं है, वो मसलक आला हजरत का नारा नहीं लगाते। इसलिए ये अपने आप को आला हजरत ही बनते हैं, सिर्फ ज़काते खाने के लिए, सदक़े खाने के लिए। क्या ख्याल? अभी इसी से एक बात बनती है जो मसलक आला हजरत का नारा नहीं लगाते मुसलमान नहीं है। तो वही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये 1450 साल से लेकर अभी तक जो है कि वो मुसलमान नहीं थे, जो लोगों ने मसलक आला हजरत का नारा नहीं लगाया, क्या मुसलमान नहीं हुए? मसलक आला हजरत नारा लगाना ही मुसलमान होने की दलील है। तो जो उनसे पहले थे
तो वो किसका नारा लगाते थे? वो किसका नारा आप- नहीं, कभी मसलक इमाम रब्बानी का नारा नहीं लगाया कि ये सबसे बड़े मुजद्दिद हैं, कि उनके मानने वालों ने कभी कहा हो मसलक इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी? नहीं। अच्छा, ये कहते हैं गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया, इन्होंने बचाया, तो गरीब नवाज के तो 650 साल के बाद आला हजरत पैदा हुए हैं, तो क्या 650 साल के अंदर फितने पैदा नहीं हुए? अकबर का फितना जब ही तो पैदा हुआ है, गरीब नवाज के बाद में ही तो हुआ है। हाँ, तो ये कभी इमाम रब्बानी के नाम से कभी बरेली वाले जलसा नहीं करते साहब। बस एक बार पीर शफीन मियां साहब ने करवाया उनके नाम का जलसा, उसमें मैं भी था इंटर कॉलेज में, उसको भी इन लोगों ने होने नहीं दिए थे, बरेली वालों ने, खानदान उससे भी आड़े आ गए थे कि इसको यहाँ रोका जाए, वो भी गेट बंद कर दिए थे, बड़ी मुश्किल से आजादी, उसमें भी गेट बंद कर दिए थे उन्होंने, 2-4 चालू रखे थे, बाकी गेट खास गेट बंद कर दिए थे कि इमाम रब्बानी के नाम से यहाँ जलसा क्यों हो रहा बरेली में। अब बताओ, सब मुजद्दिद के नाम का जलसा नहीं करने दे रहे थे साहब बरेली में ये लोग, ये खानदान। जी 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 जी। और अगर किसी ने जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करा दिया ना बरेली में, सुन्नियों ने जश्न इमाम बाकर, जश्न इमाम जाफर, तो ये लोग आ जाएंगे, खानदान अलग के लोग, दाऊद हुसैन वाले आ जाएंगे, शायद उसमें भी रुकावटें डाल देंगे कि ये जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैसे कर रहा हो आप, शीयत फैल जाएगी, क्या कहेंगे, शीयत फैल जाएगी। ये सोचना कि अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, इमाम बाकर की, इमाम जाफर की फजीलत सामने आ गई तो फाजिल बरेलवी को फिर कौन मानेगा, इन्हें हम कैसे मनवाएंगे? अरे इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे अकाबिर उलमा पर जो है कि अपने आप को दूर कर दिया, और दूर होता अल्लामा इंतखाब कदीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अच्छा, इंतखाब आलम मुनासिर आजम इंतखाब आलम कदीरी साहब मुरादाबादी। हाँ। अरे क्या बात है, बहुत बड़े सुल्तान मुनाजिर। क्या बात है, क्या बात है। अरे उनको तो जो है कि उनकी बात ही जो है कि एक बड़ी निराली, बड़ी शान, इतनी शान और बेहतरीन शानदार हाफिज, बेहतरीन हाफिज और कारी भी हजरत, मैंने कलब सुनी है, कलब भी बहुत बढ़िया पढ़ा। हाँ, बेहतरीन कारी, बेहतरीन हाफिज और कारी, बेहतरीन फन्नी कारी थे आप, बिल्कुल फन्नी कारी, सवाब कारी साहब, फन्नी कारी थे आप, और बेहतरीन कुरान पढ़ने का अंदाज इतना शानदार था, मत पूछिए। तो वो अब उनका जो है कि फतवा लगा दिया, उनको काफिर मानते ना, बरेली वाले काफिर मानते हैं उनको, नऊज़ बिल्लाह। अब तो उनका लड़का आके बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज में आकर के जो साल ठोक के कहा कि कोई बरेली में आला हजरत के खानदान में कोई है माइका लाल तो आए हमसे मुरादरा कर ले। अच्छा, बरेली में आकर के जी, मैं तो ये कहता हूँ दौरे जदीद में सुल्तानुल मुनाज़िरीन इफ्तिखारुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती इंतखाब कदीरी जैसा कोई आलिम ही नहीं था मुनाजरे में। बिल्कुल बिल्कुल नए दौर में अभी कोई नहीं था साहब उनके मुकाबले में। नहीं सही, बल्कि बरेलवी वालों को एहसान मानना चाहिए, बरेली वालों पर उनका एहसान है इंतखाब आलम कदीरी साहब का। सबसे वो पूरे मुरादाबाद से बरेलवियत खत्म हो जाती बहुत पहले ही, अगर वो नहीं होते ना तो बरेलवियत जब से ये समझ 10% बचती अब तक मुरादाबाद में। ये इंतखाब आलम कदीरी साहब का एहसान है साहब बरेली वालों पर, लेकिन एहसान फरामोश बस। और ये कह रहा हूँ, बड़े बड़े काबिर उलमा पर कुफ्र का फतवा लगा देना। बस देखो ना, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर बना दिया जो खलीफा है मुफ्ती आजम थे, और मुफ्ती नेपाल को मुफ्ती जैश मोहम्मद ने काफिर बना दिया, और मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी ने मुफ्ती जैश मोहम्मद को काफिर बना दिया। ये तो बिदअतियों की पहचान लिखा है साहब। इसमें अल्लामा नकवी खान ने तफसीर अलम नशा में जिल्द 2 में लिखा, सफा नंबर 173 आप पढ़ लेना। तो अहले बिदअत की पहचान ये है कि ये आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। देवबंद वाले थोड़ी कहते साहब ये बिदअती आपस में एक दूसरे को काफिर कह रहा है। शरा है मेरे पास है, तो आप पढ़ लेना। उसमें कौन सी, 1 जिल्द वाली है कि 2 वाली है? दोनों जिल्द है। तो वो तफसीर सफा 173 पढ़ लेना, उसमें लिखा है ये अहले बिदअत की पहचान है कि ये आपस में एक दूसरे को काफिर करते हैं, एक दूसरे पर लानत करते हैं। हाँ बिल्कुल। वो ये देखो इनके फतवे से तो ये मुफ्ती निजामुद्दीन साहब जो वहाँ गए थे ना सैयद सलाम इलाहाबाद में, हजरत के पीर मियां साहब जो अभी मौजूद है, काबिल पीर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। उनके कई बार गए, मुफ्ती बद्र आलम साहब, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, मुफ्ती मुतीर रहमान साहब 7 दिन रह के आए। अब क्या बहाना बनाते हैं कि पहले दाढ़ी थी अब दाढ़ी नहीं है। तो अरे भाई पहले दाढ़ी थी अब दाढ़ी नहीं है, तुम्हारे ऊपर तो फतवा तो लगेगा ना, जैसे तुम पब्लिक पे लगाते जनाजा पढ़ने पर। तो तुम तजदीद ईमान निकाह बेअत कब करोगे? जब अब्बू मियाँ के एक बार थोड़ी गए, कई बार गए हो, खाया भी है, पिया भी है, नमाजें भी पढ़ी है, तो नमाजें दोहराओ और ऐलान करो कि हमने वो नमाजें पढ़ी थी अब दोहराना। क्या ख्याल है साहब? हाँ, तो अब उसका मिसाल ये मुफ्ती मुतीर रहमान क्या देते हैं, मैं उस वक्त तक जो है कि नमाजें पढ़ता, जिस वक्त तक उनको यानी हक पे पाया, हक पे देखा, हक पे चलते फिरते, हक पे बोलते चलते देखा मैंने, तो उस वक्त तक जो है मैं पढ़ा। उसको जो दाढ़ी से निकाल दिया उन्होंने, भाई एक दाढ़ी वाला ये जो है कि इमाम साहब है, तो अब जो है कि
दाढ़ी है तो नमाज पढ़ रहा है, दाढ़ी उसमें मोटा भी है, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। हाँ हाँ ये मिसाल देकर के उनके ऊपर ये मिसाल देते हैं वो कि पहले वैसे थे तो इसलिए हम यानी हाथ पे चलना, हाथ पे बोलना, शरीयत के पाबंद से ये है वो है, तो इसलिए उनके वो नहीं, ये बहुत अच्छा आपका मिजाज लगा। आप तो मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा हैं। सन 1981 में आपको खिलाफत मिली थी ना फिर? जी 80 में कहाँ पर दी थी खिलाफत? बरेली शरीफ में। नहीं, कौन सी मस्जिद में दी थी? बरेली शरीफ जो है कि मजहर इस्लाम में। मदर इस्लाम जब बीबी जान वो बीबी जहूरा क्या नाम है उसका, हाँ मुफ्ती आजम हिंद कायम किया था मदर इस्लाम वहाँ उसमें। हाँ तो बीबी मस्जिद। अच्छा, उसी में खिलाफत दी थी आपको? हाँ हाँ बीबी मस्जिद। उसी में तो हाजी मुबीनुद्दीन साहब ने पढ़ाया भी था। हाँ हाँ हाजी मुबीनुद्दीन साहब उसने पढ़ा के गए, काफी टाइम पढ़ाया है। उसी में आपके दामाद जो मुफ्ती खालिद मियां रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, बड़े मुखलिस आदमी थे, बहुत वहीं पढ़े कि वहीं पढ़ो आप? मजहर मुफ्ती आजम, मजहर वो जो मुफ्ती आजम ने कायम किया था बीबी जहूर मजहर इस्लाम। हाँ मजहर इस्लाम जो है कि बीबी मस्जिद में मजहर वहीं से फारिग हैं आप? मैं मजहर इस्लाम से फारिग हूँ। तो मजहर इस्लाम में तो आपके उस्ताद होंगे, मुफ्ती सैयद अफजल साहब होंगे या फिर मुफ्ती जहांगीर साहब होंगे? हाँ मुफ्ती जहांगीर साहब। मुफ्ती जहांगीर साहब होंगे, और जो है कि और भी थे बहुत उस जमाने के करीब करीब काफी उलमा थे। तो इतना बढ़िया मिजाज आपका है, आप मुफ्ती आजम के खलीफा और आलात के मदद फारिग, फिर भी आप फतावा हुशाम हरमैन को नहीं मानते? बड़े ताज्जुब की बात है। इसलिए नहीं मानता हूँ कि उसमें जो गलत मतलब चीज, जो चीज आपने किताबों में लिखा है वो बहु उसमें पहली नहीं है, लिहाजा उसका जवाब बराबर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हजरत फतवा माना जाए कि जो उसमें इनके काफिर शक करे वो खुद काफिर है, तो फिर तो दुनिया के 50 करोड़ से ज्यादा आलिम मुसलमान काफिर हो जाएंगे। पब्लिक जो सवाल हुसामुल हरमैन में जो सवाल लिखा गया वो सवाल, वो जिस किस्म के सवालात है वो सवालात वहाँ जो है कि वो जो अरबी में दिया गया वो सवालात इनके उर्दू की किताबों का वो जो है कि नहीं है, तर्जुमा नहीं है वो अरबी। तो जैसा वहाँ सवाल लिख दिया वैसा जवाब आ गया। मैंने इस पर ये कहा था कि अगर तुम ये कहते हो जो इसमें उनके काफिर में शक करे वो काफिर है, तो उनके तो खानदान हाफिजों से भरे हुए हैं। थानवी साहब, नाथवी साहब, इनके खानदान में कुरान के हाफिज बहुत है साहब। और इनके खानदान में बता दो आप, पीलीभीत में अगर कोई हाफिज हो कुरान का, हशमती खानदान में एक भी हाफिज नहीं है। और फाजिल बरेलवी के खानदान में आप खुद जानते हो कोई भी हाफिज नहीं है, अभी तक नहीं है शायद। नहीं हाफिज नहीं है, बिल्कुल। आपने भी तो तजर्बा किया होगा, कौन ने तरावी पढ़ाई कहीं भी हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में किसी ने भी आज तक कुरान मुकम्मल नहीं सुना है तरावी में खानदान फाजिल बरेलवी के आदमी ने? अब वो एक रिवायत जो है कि जो वो है जो जिस पर मेरा जो है कि अभी तक ये है कि बस मुकम्मल तरीके से जो यानी ईमान होता है वो मैंने यकीन नहीं कर पाया। वो क्या बात कि आला हज़रत के सिलसिले में बताया गया कि उनको किसी ने जो है कि वो लिख दिया, खत में हाफिज लिख दिया, और आपने तो उस पर आपने अपने आप को बहुत दावत किया है। और वो सही कहा आपने हज़रत, मैं भी इसमें बारे में शक करता था। फाजिल बरेलवी भी गालिबन जो आप कह रहा वही मेरा नजरिया है कि हाफिज होना उनका भी मुश्किल ही था। तो ये इस किस्म से जो ऐसा करना और ये बस। अच्छा, फिर लिखते हैं अनवारुल बयान में लिखा कि 8 घंटे में हाफिज हो गए। 8 घंटे में तो जो हाफिज कुरान है वो मुकम्मल सुना पाएगा 8 घंटे में। अनवारुल बयान में लिखा कि 8 घंटे में फाजिल बरेली कुरान के हाफिज हो गए। तो मैं क्या इससे पहले पढ़ते नहीं थे? क्या बचपन में कुरान नहीं पढ़ते थे? जब एक बार पढ़ने में याद हो गया तो क्या बचपन में कुरान नहीं पढ़ते थे? क्या उन्होंने जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ा क्या जवानी में? क्या ख्याल है? इन बातों पर मेरा यकीन नहीं है। नहीं, सही कह रहा हूँ आप। ये लिखते हैं कि वो रमजान में उनको मगरिब से इशा के दरमियान 15 मिनट का टाइम मिलता था, 15-20 मिनट का, उसमें पारा याद कर लेते थे। तो 20 मिनट में तो एक हाफिज पूरा पारा पढ़ पाएगा? ये कैसे याद कर लेते थे? अरे हाफिज, जब इसका मतलब है कि नाज़ा पढ़ते में ये याद हो गया तो क्या बचपन में याद हो जाता है इनको तो फिर पूरा कुरान? क्या ख्याल है साहब? हाँ, जब वैसे ही था तो फिर शुरू से हम लोग कुरान नहीं पढ़ते थे क्या? क्या इन लोगों ने ड्रामे बना रखे हैं। अरे हजरत, ये लोग ये झूठ बहुत फैलाया इन लोगों ने, झूठ फैल के। और ये इलियास काजी की 2 लाख करामतें भी झूठी बनाई है। कब 2 लाख करामतें हैं हजरत इलियास काजी की। और ये तो हजरत सोशल मीडिया के जरिए इसकी मक्कारी मुनाजरे कुतुब अमरीका हजरत अशरफ पटेल साहब ने जाहिर कर दी, और कुतुब आलम सुल्तानुल मुनाज़िर हजरत कारी हनीफ साहब ने जाहिर कर दी। वरना ये तो और गुमराह करता आगे चल के मुसलमानों को इलियास काजी साहब। हाँ बिल्कुल। तो अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को यानी दिमाग दे दिया, अब लोग समझ जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं डलवा सिर्फ लोगों पे असर होगा, मैं बताऊंगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह। खलीफा मुफ्ती आजम ने ये इरशाद फरमाया, ऐसे आप सुनो। ठीक है ना?
ٹھیک بے شک ٹھیک اللہ سلام تعالیٰ کرم فرما.